My name is Pragati Jaiswal and I'm pursuing MBA right now. Well, basically I belong from Hinduism, but I believe in humanism. So that is why my question is, like, if I have to marry a Muslim, and should I need to convert it to Muslim or Islam? Sister said that though she is a Hindu, she believes in humanism. और अगर उसे शादी करने के मुस्लिम के साथ, I'll go back to Urdu because it's Urdu crowd. सवाल था कि अगर उसे मुस्लिम से शादी करना है तो क्या जरूरी है कि वो इस्लाम कबूल करे? सिस्टर, अगर आप कहते हैं कि आप ह्यूमैनिज्म इंसानियत में मानते हैं तो इस्लाम में सबसे पहला चीज है क्या? इंसानियत होना चाहिए आप में, नंबर 1. और एक चीज, अगर गाड़ी चल रही है, एक चाक गाड़ी का ट्रैक्टर का है और एक चाक साइकिल का है, तो गाड़ी चल सकती क्या? एक ट्रक का चाक है, एक साइकिल का है, तो गाड़ी चल नहीं सकती. चारों पहिए यकसा होना चाहिए तो गाड़ी चलेगी. तो इस्लाम के अंदर है कि बुत परस्ती गलत है, एक खुदा को मानो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो. अगर Sorry to interrupt you, but I would like to say that I do not believe in idol worship. I believe in one supreme power, that is you call it Allah, I call it Bhagwan. हिंदुइज्म में भी लिखा हुआ है कि भगवान एक है, बुत परस्ती गलत है. हिंदुइज्म में और भी लिखा हुआ है. हिंदुइज्म पढ़ेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो अगर आप सच्चे इंसान हैं तो ईश्वर के अलावा, एक खुदा के अलावा आपको आखिरी पैगंबर में भी मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर को जो किताब नाजिल की उसको भी मानना पड़ेगा. आप अगर चाहे आपका नाम मत बदलो, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा, आखिरी पैगंबर में मानना पड़ेगा, आखिरी पैगंबर की किताब में मानना पड़ेगा. यही सही इंसानियत है. इंसानियत के लिए आपको इंसान के बनाने वाले भगवान को मानना चाहिए. पहले ये तहकीक करना चाहिए कि भगवान की किताब कौन सी है. आप जब तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि भगवान की कई किताबें आ चुके हैं. आखिरी किताब है कुरान मजीद. अगर आप सच्चे इंसान हैं तो आपको आखिरी पैगाम जो खुदा का है, ईश्वर का है, भगवान का है, अल्लाह का है, उसको आपको मानना पड़ेगा और उसके आखिरी भेजे हुए पैगंबर को भी मानना पड़ेगा. अगर आप इसको मानते हैं तो आप सच्चे इंसान हैं. और अरबिक में आपको कहा जाएगा मुस्लिम. आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं, फिर ही आप सच्चे इंसान हैं. अगर आप सिर्फ एक खुदा में मानते और बुत परस्ती नहीं करते तो आप आधा काम कर रहे, पूरा नहीं कर रहे. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. अगला सवाल माइक नंबर 3 से. Yes, sir. Actually, what you said, that was not my question. I was not asking something to say similarities between Hinduism or Islam. My question was, the girl needs to convert or not. If the girl is not converting, why there is issues have been Sister, I think I gave the answer. You didn't understand Hindi. I'll give it in English. I told you, you said you're a good human being. To be a good human being, you don't only have to believe in one God, you have to follow His commandments. If you follow the commandments, you also have to believe in the last messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. If you do not believe, that means you are not a very good human being. I told you that a car cannot run with one wheel being of a truck and the other being of a cycle. How will the vehicle run? When you have a vehicle, sister, so one person believing in part of Islam, one not believing, it's not right. I gave you a reply that it is wrong for a person to marry such a thing. Quran clearly mentions in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 221, that do not marry unbelieving women until they believe. So one thing is, besides not doing idol worship, that is one small part of humanity, sister. You also have to believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. If you do not believe, that means you are not a complete good human being. And you cannot marry a person who believes in Prophet Muhammad, peace be upon him. This is the issue because that person who's a Muslim, he agrees with the teaching of Prophet Muhammad, peace be upon him. He'll say, do hijab. You say, I don't want to do. What will you do? There'll be a fight. He will say, don't expose your body. You say, I want to expose. There'll be a fight. He will say, offer prayers. You say, I don't want to offer. There'll be an argument. And surely a person would like his spouse or her spouse to go to Jannah. So imagine, I would not marry a girl who I know is not going to go to Jannah. I will surely like to marry a girl. I would like my wife to go to Jannah. So the best thing, sister, I gave you the answer which you didn't understand in Urdu. I'm repeating in English. It's compulsory for both the people should be of the same religion. Both should be Muslim. Then only can they marry. Hope that answers the question. अस्सलाम वालेकुम जाकिर नाइक साहब. मेरा नाम विकास है, विकास गुप्ता, और मैं एक स्टूडेंट हूं. और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने जो
जिज्ञासा की जोत जगाई है हम सब के अंदर धर्म के बारे में जानने के लिए। और मैं भी पहले धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था, मगर आपको सुनने के बाद मुझे भी धर्म में रुचि हुई है। और अब जब मैं कुछ जानने लगा हूँ धर्म के बारे में, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने एक शब्द सुना है काफिर। तो ये काफिर शब्द जो है, ये ईश्वर को ना मानने वालों के लिए है या इस्लाम को नहीं मानने वालों के लिए है? भाई का बहुत अच्छा सवाल है। सवाल तो हमेशा पूछता है काफिर क्या, इसका सवाल जरा और अच्छा है माशाल्लाह भाई साहब का, कि काफिर का मतलब वो जो ईश्वर को नहीं मानता है, कि काफिर का वो मतलब है जो इस्लाम को नहीं मानता है? काफिर का सही मतलब है जो सही ईश्वर को नहीं मानता है। अगर आप गलत ईश्वर को मानते तो भी काफिर है, और सही ईश्वर का मतलब आपको इस्लाम में ही मिलेगा। इस्लाम के मानी है अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करना। तो वो आदमी जो अपने ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है उसे कहते काफिर। अगर एक शख्स कहता है मैं ईश्वर में मानता हूं लेकिन ईश्वर की बात को नहीं मानता है, तो भी काफिर होता है। आप समझ रहे ना? तो मुस्लिम का मतलब ये नहीं कि जिसका नाम सुल्तान है, जाकिर है, मोहम्मद है। मुस्लिम का मतलब वो शख्स जो अपने सारे ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करता है, उसको कहते मुस्लिम। और जो अपने ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है और कहता है कि जरूरत नहीं है, उसे कहते काफिर। तो अगर आप कहेंगे क्या मैं ईश्वर को मानता हूं, बुत परस्ती नहीं करता हूं, लेकिन फिर जो ईश्वर का कहना नहीं मानते और बोलते जरूरी नहीं है, तो उसे कहते कुफ। कुफ अरबी लफ्ज है जिसे कहते छुपाना, टू कंसील, या रिजेक्ट करना, नहीं मानना। तो अगर आप ईश्वर की बात को भी नहीं मानते तो भी आप काफिर हो जाते। आप मतलब कोई भी शख्स ना, नाम चाहे अब्दुल्ला हो, सुल्तान हो, राजेश हो या रामू हो, कुछ भी हो, अगर वो ईश्वर की बात को झुटलाता है, रिजेक्ट करता है, उसे अरबी में कहते हैं काफिर। बेशक। और मैं ये भी जानना चाहूंगा, जब मैंने इस्लाम के बारे में जानना चाहा तो मैंने इस्लाम के बारे में कुछ जो भी जाना, तो उसमें मुझे कहीं ऐसा लगा कि ये सच नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा ये मिसकंसेप्शन है या ये सही है, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा माना जाता है क्या इस्लाम में कि जो इस्लाम को ना माने या जो काफिर है उसे मार दिया जाए, काट दिया जाए, उसके फैमिली को लूट लिया जाए? क्या ये किस हद तक सच है, और क्या उसको इस दुनिया में जीने का हक नहीं? माशाल्लाह भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। वो कहता है कि मुझे ये गलत फहमी है और लगता है कि गलत है कि इस्लाम में काफिर को मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। आपको कोई भी मुसलमान ने मारा या काटा है ना? आप माशाल्लाह सही सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको किसने मारा, काटा? मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कहीं है लिखा हुआ है या नहीं? वेरी गुड। ये क्या होता है कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते, मिसाल के तौर पे अरुण शौरी का नाम सुने? अरुण शौरी जो मिनिस्टर था चंद साल पहले, बहुत किताब लिखते हैं इस्लाम के खिलाफ, बहुत मशहूर है इस्लाम के खिलाफ। लोग क्या करते, कुरान मजीद की आयत उठाते, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पस मंजर के खिलाफ लिखते, और एक आयत जो बहुत इस्लाम के क्रिटिक उछालते, वो सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, और लिखते हैं कि कुरान में लिखा है जहां भी आप काफिर को पाएंगे, इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो। आप अगर कुरान मजीद खोलेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है जहां भी आप काफिर को पाएंगे कत्ल करो, लिखा है। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। पस मंजर जानने के लिए आपको आयत नंबर पहले से पढ़ना पड़ेगा। सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है कि मुस्लिम और मुशरिक मक्का के, उनके बीच में एक पीस ट्रीटी थी, एक सुलह थी। ये पीस ट्रीटी, ये सुलह एक तरफा मुशरिकों ने तोड़ दिया मक्का के। जब अल्लाह ताला आयत नंबर 5 पे आते तो कहते हैं कि हम तुम्हें 4 महीने का वक्त देते हैं, 4 महीने की मोहलत, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। आपने सुलह की थी, आपने सुलह को तोड़ी, 4 महीने का वक्फा, सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में, जंग के मैदान में जब भी आप काफिर को पाएंगे, मतलब दुश्मन जब आएंगे जंग के मैदान में, तो आप लड़ो, डरो मत। अभी कोई भी आर्मी जनरल आज की तारीख में, सिपा सलार, वो थोड़ी कहेगा दुश्मन आए तो भाग जाओ, वो कहेगा डरो मत, लड़ो, मारो। तो ये जंग के मैदान की आयत है कि आप जब देखेंगे तो डरो मत, मारो। जंग के मैदान में जब काफिर तुम्हें हमला करने आ रहे, मारो। और अरुण शौरी आयत नंबर 5 से उड़ी मारते आयत नंबर 7 में। उसने किताब लिखी वर्ल्ड ऑफ फतवास, इस्लाम के खिलाफ। आयत नंबर 5 से जब मारते आयत नंबर 7 पे, 5 के बाद क्या आता है? 6 को खा जाते। क्यों? 6 में उसका जवाब है,
उसकी बीमारी का जवाब है। आयत नंबर 6 में सूरह तौबा के अल्लाह ताला फरमाते कि अगर कोई काफिर सुलह चाहता है उसे छोड़ मत दो, उसे ऐसी अमन के जगह पर महफूज पहुंचाओ। क्या कहता है अल्लाह ताला? अगर कोई काफिर सुलह चाहता है, अमन चाहता है, उसे छोड़ मत दो, उसे संभाल के हिफाजत के साथ महफूज जगह पे जाके छोड़ो। एस्कॉर्ट हिम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। आज का सिपा सलार सबसे दयालु क्या बोलेगा? दुश्मन को जान दो। यहां अल्लाह ताला कहते सिर्फ छोड़ो मत, ऐसी जगह पे लेके जाओ हिफाजत के साथ जहां वो महफूज है। समझ रहा? तो ये कुरान की आयत है। तो इन लोग पसे मंदर के खिलाफ कोट करते, और जहां भी जिहाद की आयत है, जंग के मैदान में जब आप मिलते गैर मुस्लिम से, वो आपको कत्ल करना है, कत्ल करो। उसके बाद फौरन आप पढ़ेंगे सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 के बाद 61 में लिखा है अमन बेहतर है। महाभारत में कत्ल करने के कितने श्लोक आते? कितने? हजारों, कुरान से कई ज्यादा। तो महाभारत जानते हैं आप ना? जब मैं हिंदू से पूछता हूं महाभारत में झगड़ने के कितने, लड़ने के कितने श्लोक है, तो वो हिंदू मुझसे कहता जिहाद है। के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे धर्म में भी धर्म युद्ध है। सुनिए मेरी बात ना, धर्म युद्ध है बराबर। तो हिंदू मुझसे कहता है ये जो धर्म युद्ध है क्या है? बातिल के खिलाफ है। वो बातिल को झगड़ने का लिखेला महाभारत में। तो मैं कहता हूं कुरान में भी वही लिखा है, किसका कत्ल करो? जो धर्म के खिलाफ है। आप समझे ना? धर्म युद्ध मतलब हक और बातिल के खिलाफ झगड़ा। तो बातिल को कत्ल करने का लिखा गया महाभारत में, वही लिखा है कुरान में। और भगवत गीता, भगवत गीता जानते? सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भगवत गीता। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं। अब जब भगवत गीता पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 भाग नंबर 1 श्लोका नंबर 42, 43, 44, 45, उसके अंदर अर्जुन कहता है, झगड़ा होता है अर्जुन पांडवास और कौरवास। पांडवास 5 भाई, कौरवास 100 भाई। अर्जुन जंग के मैदान में हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदार से झगड़ा करूं। उसके फौरन बाद, चंद श्लोक बाद, भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते, क्या कहते? ए अर्जुन, तू बुज़दिल कब से हो गया? ये गलत ख्यालात तेरे दिल में आए कैसे? तू नपुंसक कैसा हो गया? इंपॉर्टेंट। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट, नपुंसक। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण अर्जुन से। बुज़दिल कब से हो गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 31, 32 और 33 में कहते क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप सफलता पाएंगे नहीं। क्षत्रिय वो खुश नसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। और अक्सर लोग कहते, एतराज करते, इस्लाम के दुश्मन, क्रिटिक्स, हमारे अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में कहा था कि जिहाद के मौके पे जब मुजाहिद जंग के मैदान में जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। लिखा है सही बुखारी में किताबुल जिहाद जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 कि जंग के मैदान में जब मुजाहिद जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उससे दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर लोग बोलते कैसा मजहब है, लड़ने पे कत्ल करने पे जन्नत जाएगा? गलत मजहब है। लेकिन भगवत गीता पढ़ेंगे भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 37, 37, श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, ए अर्जुन उठ के लड़। अगर तेरा कत्ल हो जाएगा तू स्वर्ग में जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटेगा तो उससे दुनिया की दौलत मिलेगी। हू बहू जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सही बुखारी में, वही भगवत गीता में लिखा है। तो अरुण शूरी जब तनकीद करता है कुरान के बारे में, उसने खुद अपनी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं। अरुण शूरी ने महाभारत भी शायद नहीं पढ़ा। अगर महाभारत और भगवत गीता पढ़ा होता तो कुरान में मिस्टेक निकालता ही नहीं। अब समझ रहे? तो ये में मिस्टेक नहीं निकाल रहा। मैंने कब का आप निकाल रहे भाई? मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूं, मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूं। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि काफिर का कत्ल करो। ये कहां नहीं लिखा है? ये लिखा है जंग के मैदान में। तो आपने जो सवाल किया था कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है काफिर को कभी मारो, तो इतने मुसलमान आपको छोड़ते थे क्या? छोड़ते थोड़ी थे। ये गलत फहमी है, आप समझे ना? तो ये गलत फहमी है कि जहां भी काफिर मिले कत्ल करो, ऐसा नहीं। ये जंग के मैदान में जब आपको लड़ने के लिए आ रहे, आपको मारने के आ रहे, तो आप उनको मारो। ये है। होप द आंसर द क्वेश्चन। Vijay Bhutra,
and I am an industrialist. कल शाम को मैंने आपके पास में कुछ बातें रखी. I am Vijay Bhutra and I am in the profession of making resins, which is very similar to yours. We make chemicals which bonds certain plywood. So मैं भी जोड़ने का ही काम करता हूँ जो आप by way of your spiritual. I had been to airport. We received you. I had been here yesterday. I was today again in your conference, and I am here right from beginning. During the entire session, what conclusion I have arrived from your lectures about three things. You have told Murti Puja is not acceptable. That is what I gathered from your. It is not acceptable even in the Vedas. You have quoted certain rituals, certain this one. मैंने वहाँ की कुछ श्लोकें आपने पढ़ी. Let me tell you, I am not aware of the Vedas and Upanishads. I am aware of little bit of Bhagavad Gita, which we take it priority even if much more weightage than the Vedas and Upanishads. Then you have told yesterday that other than Quran, please excuse me, I am not underestimating Holy Quran. Not at all, my intention is not at all there. But you have told Keval Quran, He, you have added the word yesterday, He is the law of today which can rectify the people today. You have undermined the entire others, not even Bible, even Gita, everything. Nothing is relevant today, only Quran is relevant. I am coming to sir. Please excuse me, you will have to give me some time. Because I personally would like to meet you also. And then third, you have touched all 3 days, Kalki Puran, which you have told ki Pagambar is the last avatar. There will not be any avatar. For that also, you have given illustration from Vedas. Now let me tell you, sir. नहीं ऐसा है सर, मैं कर जाता हूँ सर. 10 बज चुके हैं, फिर भी मैंने मौका दिया. अगर आप ज्यादा करेंगे, हमको यहाँ लॉ का इख्तियार रखना चाहिए नहीं. टाइम खत्म. इतना लंबा वक्त था आपको माइक्रोफोन आने के लिए, आप नहीं आया. 10 बजने के बाद आप खड़े होते और इतना लंबा सवाल पूछते. मैं जवाब देने को तैयार हूं. अगर पुलिस इजाजत देती मैं देता हूं. कोई बात नहीं. Let my question be incomplete and let the answer be not. But why are you coming so late? I am sorry for this. See, my turn did not come. Complete your question. Complete your third question. No, if you permit, if you the everything but is saying, no problem. कल इंशाल्लाह भाई साहब पहला सवाल जवाब दूंगा आपको. कल फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क. Yes. First question, inshallah. Thank you. I want to reply to you in public. Thank you. In public, not privately. I am also going to put the questions in public, sir. Inshallah. I also put my question, entire question, Oh, sure. tomorrow in public, sir. Thank you. Thank you. विजय भूत्रा and I am an industrialist. कल शाम को मैंने आपके पास में कुछ बातें रखी. मैंने उस बातों को लेकर के रात भर काफ़ी मनन किया सर. और काफ़ी मेरे मित्र जो कलकत्ते में पंडित है, विद्वान, उनसे से बात की. एंड विश्वास कीजिए सर, आई कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट. आपसे मिलना चाह रहा था, सवेरे बहुत चेष्टा की, बट अनफॉर्चुनेट इतने आपका बेस्ट कार्यक्रम मिल नहीं पाया. बात करने के बाद में मैं अब आज अभी इतना सुकून महसूस कर रहा हूँ आपके सामने अपनी बात रख करके कि आपने जो बातें कही 3 दिनों में वो सब सही, और आपके निर्णय जितने भी से सब ठीक थे. कहीं आपने गलत नहीं कहा. मैंने जब प्रश्नों पर गौर किया तब मुझको ये समझ में आई कि मेरे को प्रश्न ही नहीं करना चाहिए था. इसके साथ में अब ये तो मेरे प्रश्न, मैं आपसे कुछ मेरा एक्सपीरियंस विद किशनगंज, मेरे बंधुओं के साथ में जो मैं यहाँ करता हूँ, शेयर करना चाहूँगा. और उसके लिए आपसे इजाज़त है सिर्फ 2 या चंद मिनटों की. सर, मैं किशनगंज में जब भी रहता हूँ, मेरा अधिकतर समय मेरे भाइयों के साथ में बिकता है. मैं मुसलमान शब्द का इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर भाइयों के आगे मुसलमान शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया सर, क्योंकि मैं अपने आप को उन्हीं के बीच क्या पाता हूँ. सो मैं ये मुसलमान और हिंदू बोल के डिफरेंस नहीं करना चाहता हूँ. आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ सर. हमारे यहाँ पर सैयद मजरूल हसन जी हैं, उनके
रमजान के पवित्र महीने में हम यहाँ पर एक आयोजन करते हैं इफ्तार का। विश्वास मानिए सर, उस समय इतना पवित्र वातावरण रहता है यहाँ पर और इतनी खुशी लगती है, उसका पूरा दायित्व मजहर भाई हम लोगों के ऊपर दे देते हैं, हमारे और भी हिंदू मित्र हैं उनके ऊपर में देते हैं। और जब 5 बजे की नमाज होती है और उसके बाद का जो समय रहता है वो देखने के बाद में जब हम उन्हें इफ्तारी कराते हैं सर, तो विश्वास कीजिए मुझको लगता है कि मैं उनमें से एक ही हूँ, मैं अलग नहीं लगता हूँ। इतना अच्छा पवित्र वातावरण उसमें आज मेरे यहाँ पर बीइंग एन हिंदू इवन अगर मुझे बोला जाए तो गुफरान भाई, शंभू भाई, मैं किन किन का नाम लूँ सर आपको, पप्पू भाई, हिंद मुस्लिम भाई, इतने भाई हैं मेरे, सब भाई हो जाते हैं। तो मैं इतना वातावरण अपने को पाता हूँ उसके साथ में। अभी छोटी मिसाल देता हूँ सर, आपने जो बीड़ा उठाया है हिंदू अलग दूसरे कास्ट में गलत धारणाओं को दूर करने का, उसके प्रयास में मैंने भी एक काम किया। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसको कि अभी मेरे लड़के की शादी थी, मेरे समधी नेचुरली हिंदू हैं, उनके मन में काफ़ी गलत धारणाएं बैठी हुई थी। मेरे यहाँ से कुछ मेरे खास मित्र बंधु वहाँ पर गए एंड लेट मी टेल यू 3 दिन उनके लौटने के बाद में उन्होंने मुझको फ़ोन किया, बोले भूतरा जी आपके जो मित्र यहाँ पर आए थे उनसे मिल करके केवल उनकी प्रेजेंस से और उनसे थोड़ी बातों से हमारी काफ़ी धारणाएं दूर हो गई। अब मैं उनके प्रति कभी भी मेरी कोई ऐसी बात नहीं रहती है जिससे, जैसे मसलन मान लीजिए मांसाहारी, थोड़ा इस तरह का उनका एटीट्यूड था। लेकिन जब उन्होंने देखा तब उन्होंने मतलब ये कहा, बोले कि इतने बढ़िया व्यवहार और इतनी बड़ी नेकी भाईचारा का व्यवहार, बहुत खुश हुए। तो मेरा कहना ये सर, इस्लाम के प्रति मेरी ये अच्छी धारणा है कि आज ये भाईचारा और ये फैलाने में बहुत बड़ी सार्थकता होती है इस्लाम में। और मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं सर। एंड मेरे पास में अब कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता सर, आपकी सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू। माशाल्लाह भूतरा साहब माशाल्लाह करीब भाइयों में से है, और कल रात को वक्त की तंगी होने की वजह से उनने 3 सवाल किया था और मैं चाहता था जवाब दूं, लेकिन जहाँ तक ये लॉ का सवाल है कि 10 बजे ख़त्म होना चाहिए, इसलिए ख़त्म करना पड़ा। तो मैंने उनसे कहा कि पहला मैं आपको मौका दूंगा, एक नहीं 3 सवाल पूछने का। लेकिन भूतरा साहब ने कहा कि पूरी रात नहीं सोई, उनने कोशिश की, पंडितों से पूछे और चेक किया, जो मैं चाहता हूँ, और उन्हें इत्मीनान हो गया कि जो भी मैंने कहा सच कहा माशाल्लाह। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी ये शहादत मेरे जवाब से और अच्छी है माशाल्लाह, मेरी तकरीर से अच्छी है। और यही मेरा हमेशा फलसफा रहा, मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम में कभी भी भेदभाव हो या कभी भी आपस में नफरत हो। जरूरी नहीं कि जो मैं बोलता हूं हर एक आदमी बात माने, और जो मेरी बात नहीं मानता है उसको मैं पहला मौका देता हूं ताकि जो हमारे दरमियान जो गलत फहमी है वो दूर हो। इसीलिए मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं आपका जवाब न दे सका कल, बहुत दुख हुआ मुझे। कहूँगा सिर्फ हाँ जी, बोलिए। मुझे याद है आपका प्रेस इंटरव्यू, जब आप जिस दिन यहाँ पर किशनगंज में आए थे तो किसी पत्रकार ने आपसे कहा था कि मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं क्या? तब आपने तुरंत उन्हें जवाब दिया रास्ते भी एक है। उस दिन से लेकर के कल उस विचार पर भी मैंने सोचा, तो वास्तव में आपका कथन एकदम सही है सर। मैं इसमें थोड़ी तब्दीली करता हूँ अपने मन से कि मंजिल भी एक है सर, रास्ते भी एक है। हम हो सकता है रास्ते में अकेले चलने में थोड़ा घबरा जाते हैं, इसीलिए किसी का सहारा ले लेते हैं, मूर्ति पूजा या किसी का सहारा ले लेते हैं। बट कहीं दूर तक जाने के बाद में अल्टीमेटली आप और मैं और तू एक हो जाते हैं और फिर केवल रह जाता है हम। भाई साहब, भूतरा साहब, आप बोलते कहीं ना कहीं आगे जाके एक होते। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ से एक हो, अगर यहाँ से एक हो जाए ठीक बात, तो बात ही कुछ और है। थोड़ा डर लगता है सर। मैं चाहता हूं कि आपके साथ में ज्यादा वक्त बिताऊं, कहीं आगे जाके एक हो तो बहुत दूर हो जाएंगे, कभी हम रहे ना रहे। मेरी ख्वाहिश है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ से एक हो। सर ऐसा है, हम आपके बनस्पत
हो सकता है थोड़े कमजोर दिल के हो सर। नहीं, कमजोर हो सकता है। इंशाल्लाह इसीलिए पुख्ता। हमें किसी सहारे की दरकार पड़ती है। अब बाकी कहीं पर कहीं ना कहीं हम मिलते जरूर हैं सर आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपके पहले जो भाई साहब ने सवाल भी किया था, जो जैन साहब थे, लोग को कभी कभी बुरा लगता है, मैंने ये कहा भाई आप भी मेरे कुरान में से कुछ ऐसी चीज बताओ जो आपके भगवत गीता आपके वेद से मिलते, वो मैं 100% मानूंगा। मैं डबल स्टैंडर्ड नहीं हूं, लोग को लगता है क्योंकि मैं इससे बात करता हूं, लेकिन जो लोग तहकीक करते वो मेरे करीब आते, जो लोग तहकीक नहीं करते वो हो सकता है मुझसे दूर जाते। लेकिन अक्सर जितने गैर मुसलमान मेरे तकरीर सुनते हैं, अक्सर में बोल सकता हूं कि मोर देन 80%, अल्हम्दुलिल्लाह 80% से ज्यादा, अभी वो 90 है क्या 85 वो मैं नहीं कह सकता हूँ, या 95 है, लेकिन 80% से ज्यादा माशाल्लाह जितने गैर मुसलमानों से मिलता हूँ, हो सकता है 90% से ज्यादा, वो जब जानते हैं कि मैं दोगलेपना नहीं करता हूँ, जैसे बाकी जितने धार्मिक के हैं, धार्मिक प्रचार करने वाले, मैं बोलता हूँ आपने ये कि आप मानेंगे नहीं मानते, मैं कहता हूँ कि धार्मिक किताबों पे अमल करो और जो यकसा है कम से कम उस पे अमल करो, जो डिफरेंस है वो बाद में। क्योंकि जो आपने कहा मैं भगवत गीता से भी कोट कर सकता था, क्योंकि भगवत गीता है वो निचोड़ है वेद की, और भगवत गीता में भी चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 20 में लिखा है क्या ऑल दोज हुज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमीगॉड्स। मतलब जो लोग की भावना पैसे से खींची जाती है वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 21, 22, 23 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग गलत भगवान की पूजा करते हैं फिर भी जो एक ईश्वर है उनकी चीज को मान लेता है, उनके दुआ को कबूल करता है, लेकिन जो गलत ईश्वर की पूजा करते हैं वो गलत जगह जाएंगे, जो सही एक ईश्वर की पूजा करते हैं वो सही ईश्वर के पास आएंगे। अब इतनी छोटी तकरीर में मैं वेद भगवत गीता सबका तो मैं नहीं दे सकता हूँ। एक मेरी तकरीर है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम एंड हिंदुइज्म में यकसानियत। अगर मैं सिर्फ हवाले दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो 1.5 घंटा लगता है। सिर्फ मैं तौहीद का जिक्र करूंगा एक भगवान का, वेद में भगवत गीता में, भगवत गीता भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन मुमकिन नहीं क्या एक छोटे से सवाल जवाब सेशन में मैं सब कहूँ। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूं कि आपने मेरा काम आसान किया, आपने खुद तहकीक की, और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से बुतरा साहब ने जो तहकीक किए, मैं चाहता हूं कि जितने यहाँ गैर मुसलमान हैं वो भी तहकीक करें अपनी धार्मिक किताब के बारे में। इंशाअल्लाह हम सब इंसान एक हो जाएंगे और एक ईश्वर की इबादत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ये वीडियो देख ली होगी और पसंद भी आ चुकी होगी। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को अक़ल दिया है। अक़ल के ज़रिए से इंसान सोचता है, अक़ल के ज़रिए से इंसान एक चीज़ की तदबीर इख्तियार करता है, अक़ल के ज़रिए से इंसान सही फ़ैसला कर सकता है, अक़ल के ज़रिए से उन्हें हक़ और बातिल की पहचान भी हो सकती है। ठीक है ना? तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दे दिया, जैसे कि आप लोगों ने सुन लिया होगा। देखो, अगर इस दुनिया के अंदर किसी को कोई पैगाम देने वाला ना पहुँचे, ठीक है ना, आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पे आपको कोई पैगाम ऐसा दीन की दावत, दीन की बात आप तक कोई भी ना पहुँचे, आप ऐसी जगह पे मौजूद हो, तो आया आप किस तरह अल्लाह की इकरार करेंगे? किस तरह मानेंगे कि अल्लाह एक है, अल्लाह इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, चाँद, सूरज, सितारों का निज़ाम उसने कायम किया हुआ है, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे लिए पैदा की है और हम आखिरत के लिए बनाए गए हैं। तो यह इंसान के ज़हन में ये बात कैसे आएगी कि अल्लाह है, एक बनाने वाला है, ये कैसे इसके ज़हन में आएगी? कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम, कि हम उन्हें दुनिया के अंदर, इस जहां के अंदर अपनी निशानियां दिखाएंगे। देखो, अगर आप खुद अक्ल से सोच ले, आपको कोई भी ये ना कहे कि अल्लाह है, उसने इस दुनिया को बनाया है, इसके ऊपर ईमान ले, कोई भी आप तक ना पहुँचे, तो आप खुद इस अक्ल के ज़रिए से ये फ़ैसला कर सकते हो कि इस दुनिया के एक बनाने वाला है, ये एक निज़ाम जो चल रहा है ये खुद बहुत नहीं चलता, इसको इसके पीछे एक चलाने वाला है।
बनाने वाला है, चाँद सूरज का जो निज़ाम चलाता है ये कोई है, ठीक है ना? तो इस तरीके से वो इस बात के इकरार कर सकता है कि कोई चलाने वाला है, कोई बनाने वाला है, ठीक है ना? तो अक्ल के ज़रिए से इंसान सही जो है ना फ़ैसला कर सकता है कि एक बनाने वाला है, एक चलाने वाला है। और ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दीन इस्लाम अता किया है, ये दीन इंसान के फ़ितरत के मुताबिक है, ठीक है ना? हर इंसान ये चाहता है कि मेरे साथ धोखा ना हो जाए। अल्लाह ने धोखे को मना किया है। हर इंसान ये चाहता है कि मेरे साथ कोई झूठ ना बोले, झूठ हराम है। हर इंसान ये चाहता है कि मेरे साथ ज़ुल्म ना हो जाए, अल्लाह ने ज़ुल्म को हराम करार दिया। हर इंसान ये चाहता है कि मेरा हक कोई ना काले, तो ये अल्लाह ने मना किया है। तो देखो अल्लाह ने उन चीज़ों को मना किया है, हराम करार दिया है, जो इंसान नहीं चाहता कि मेरे साथ ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ठीक है ना? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों के साथ ज़ुल्म नहीं करता, बल्कि इंसान खुद अपने आप के साथ ज़ुल्म करता है, ठीक है ना? एक चीज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मना किया है, फिर भी आप इस चीज़ को इख्तियार करते हो। धोखे से मना किया है, आप खुद नहीं चाहते मेरे साथ धोखा हो जाए, दूसरे को आप धोखा देते हो। खुद आप नहीं चाहते कि मेरे साथ कोई झूठ बोले, आप खुद झूठ बोलते हो। खुद आप नहीं चाहते हैं कि मेरे साथ कोई ज़ुल्म कर ले, आप ज़ुल्म करते हो। ठीक है ना? तो इस दीन इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के फ़ितरत के मुताबिक बनाया है, लेकिन ये इंसान क्या करते हैं, खुद अपने साथ धोखा पसंद नहीं करता, लेकिन दूसरे को दे देता है। डॉक्टर साहब की यही कोशिश होती है कि ये किस तरीके से मैं जो है ना जितने भी लोगों के ज़हनों में इश्कालात होते हैं उनको दूर किया जाए और राह हक और दीन इस्लाम के पैगाम हर इंसान तक पहुंच जाए कि इस्लाम को फॉलो करने वाले बन जाए, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाए। याद रखना, हम दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं ये पैदा किए गए हैं इंसान के लिए, और ये इंसान आखिरत के लिए बनाया गया है। और आखिरत के लिए जब बनाया गया है तो उसके लिए अहकामात, इसके लिए तालीमात, इसके लिए हिदायत वो भी जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान और हदीस के ज़रिए से हम तक पहुँचाया है। अगर हम उसके मुताबिक चलेंगे, हम दुनिया में भी कामयाब हो सकते, आखिरत में भी। लेकिन अगर हम इस हुक्मों को तोड़ेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, दुनिया में भी हम ज़लील होंगे, रुसवा होंगे, आखिरत में भी हमारे लिए रुसवाई है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जो है ना एक कामयाब इंसान बनाएंगे। दुनिया भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त संवारेंगे, आखिरत में भी इनके लिए आला दर्जात और बहुत ज़्यादा नेमतें हैं। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दे दिया। मकसद इसका ये है कि इंसान खुद सोचे कि मेरे लिए इस दुनिया में ये जो ज़िंदगी है, ये वैसे नहीं है। ये वैसे अल्लाह ने नहीं दिए है कि आप इस दुनिया के अंदर बस कोशिश करें, मेहनत करें, खाए, पिए, मज़े उड़ाएँ, नहीं। बल्कि ये दुनिया की चीज़ें, ये ज़रूरत है, असल तैयारी आखिरत के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।